तलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कैसे समझेंगे तेरी शान ये ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ये ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम वो मिटाने वाले। इनमें ज़हरा भी है हैदर भी है हसनैन भी है। इनमें ज़हरा भी है हैदर भी है हसनैन भी है। कितने अफजल है मोहम्मद के घराने वाले, कितने अफजल है मोहम्मद के घराने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम वो मिटाने वाले। गिल साहब, आप फारग होकर मुझसे मिलके जाइएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल रिक्वेस्ट सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब, एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, तशरीफ लाएं अपने लेक्चर का आगाज़ करें। जनाब सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I am thankful to Islamabad Bar Council and particularly my brother, Secretary Islamabad Bar Council, who has given me and provided me an opportunity to be here so that I can share my professional experience with you, particularly towards criminal justice system and criminal trial. This is in fact an opportunity which is highly beneficial for me to have interaction with this young generation who is going to join this noble profession. I welcome all of you here. As far as lecture is concerned, I will today try my level best to discuss and share with all of you my personal experience on the topic. Topic is in fact FIA rules of investigation of 2002, CNSA 1997 and criminal trial. So as far as the topic of criminal trial is concerned, firstly we have to keep in mind the stages before the trial. Trial starts when investigating agency submits its report under section 173 of the CRPC, which is commonly known as Challan. And as far as Challan preparation is concerned, the first step is registration of FIR. And when we speak about registration of FIR, we must keep in mind the relevant section
which is 154 of the CRPC, which empowers police to register FIR in a case which is relating to a cognizable offense. If a question comes in our mind that what is cognizable offense and what is not, it is categorically mentioned in a schedule which is attached with the book of CRPC. So whenever a question comes or there is any confusion, firstly we have to go through the book to see there is complete table available in the CRPC at the end of the book, wherefrom we can verify as to whether this offense is cognizable or otherwise. So if there is a cognizable offense committed according to the complaint submitted before the police becomes duty bound to register FIR. And FIR is in fact registered just to set the law into motion. यानी कि कानून के पहिए को हरकत देने का जो पहला स्टेप है वो FIR का इंदराज है. If police see that it is not a cognizable offense, then police is duty bound to assist the informant, the person who brought the complaint before police, and to guide him to approach the court of magistrate. तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर जो आदमी कंप्लेंट लेकर जाएगा आइदर डायरेक्टली और थ्रू द पुलिस हायरार्की, इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज कलंदरा, जिसको हम उर्फ आम में कलंदरा भी कहते हैं. ये टर्म आपको इसलिए बताना जरूरी है कि कल कला अल्हम्दुलिल्लाह जब आप प्रोफेशन में आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कचहरी के अंदर मुंशी भी कलंदरा बोल रहा होगा, पुराने वकील भी कलंदरा बोलेंगे, एहलकार, रीडर, एलमद, नायब कोर्ट भी कलंदरा बोलेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कलंदरा इज. इट इज इन फैक्ट कंप्लेंट. और जहां तक कंप्लेंट का जिक्र है ज़हन में रखिएगा, सेक्शन 200 ऑफ द CRPC इट डील्स विद कंप्लेंट. So coming back to my point of registration of FIR is registered. Police is to either arrest the accused person, to investigate the case, to effect the recovery, complete the investigation and submit its report before court of magistrate. Either it is a case of murder, either it is a case triable by a court of session, either it is a case triable by a magistrate. Report of 173 of CRPC is to be submitted in all ways in the court of magistrate, not in the court of session. आप section 190 CRPC ज़हन में रखें, which deals about cognizance by the court. Cognizance is not defined anywhere either in the CRPC or in PPC or in any court of law or in any legal book, but there are certain judgments given by the higher courts, including judgments given by Indian jurisdiction wherein cognizance has been defined time to time. In brief, it means कि कोर्ट किसी जुर्म के इर्तिकाब के ऊपर नोटिस लेती है, ये समझती है कि मैंने इस केस का के ऊपर नोटिस लेकर मैंने इसके ऊपर कानूनी एक्शन स्टार्ट करना है. तो दिस इंटेंशन, दिस नोटिस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ is amounting to taking of the cognizance. तो चलान जमा हो गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने cognizance ले ली. First step would be, first of all, either accused is on bail or is in custody. Procedure is same. Court is to distribute copies of statements of witnesses to the accused person. आपके ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए, कॉपीज कौन सी हैं? आपके इल्म में है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC. क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई स्टेटमेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज बीइंग प्रोक्योर्ड. आंसर इज इट इज प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ एक्यूज पर्सन. एक्यूज को दिया जाना है ये बयान ताकि उसको पता हो कि मेरे खिलाफ कल ट्रायल के दौरान कौन सी एविडेंस आएगी. जस्ट टू इनेबल एक्यूज पर्सन, कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एट द स्टार्ट ऑफ ट्रायल. These copies are supplied to the accused person 7 days before framing of charge, so that he may prepare himself to face the trial. वो ये ना कहे
कि जी मुझे तो पता नहीं था, ये तो सरप्राइज किस्म की एविडेंस आ गई, मुझे तो इल्म नहीं था कि मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है, मुझे इल्म नहीं था कि मेरे खिलाफ कौन सी एविडेंस पेश की जाएगी, मुझे ये पता नहीं था कि किसने मेरे अगेंस्ट पेश होना है. सो इन ऑर्डर टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस, the lawmaker has provided a procedure to firstly procure the statements and then provide copies of such statements to accused person at the start of trial. इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, चार्ज फ्रेम होने जा रहा है, 7 दिन पहले कॉपी स्टेटमेंट्स की मुल्जिम को दे दी गई. अब देखना यह है कि जो कॉपीज दी जाएंगी उसमें क्या शामिल होगा. 1 FIR, 1 स्टेटमेंट जो भी होंगी 161 के तहत उनकी एक कॉपी, एंड रिपोर्ट ऑफ 173 ऑफ CRPC एंड इंस्पेक्शन नोट्स. इंस्पेक्शन नोट्स वो होते हैं कि किसी केस के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, IO ऑफ अ केस हैज विजिटेड अ स्पॉट एंड हैज प्रिपेयर्ड अ मैप एंड हैज टेकन इंस्पेक्शन नोट्स. उर्फे आम में इसको हम नक्शा मौका भी कहते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नक्शा बनाते हैं किसी भी क्राइम सीन को विजिट करने के बाद, उसके अंदर लिखा जाता है कि फलान जगह पे एक्यूज था, फलान जगह पे डिसीज था, फलान जगह पे इंजर्ड था, फलान जगह पे विटनेसेस थे. सो एक स्केच बनाया जाता है, उसके नीचे नोटिंग की जाती है. दिस इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हेन ही इंस्पेक्ट्स द स्पॉट एंड इट इज मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिपोर्ट ऑफ 173 ऑफ CRPC. आप अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रोफेशन में आएंगे, बेशुमार दोस्त भाई मेरे मैं देख रहा हूं कि वो ऑलरेडी रेगुलरली कोर्ट्स में आते भी हैं. दे मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. इन्वेस्टिगेशन फाइल के अंदर वो तमाम चीजें बाकायदा इंडेक्स करके लगाई जाती हैं ताकि कोर्ट को भी असिस्टेंस मिले, ताकि एक्यूज को भी असिस्टेंस मिले, ताकि मुल्जम को, प्रोसिक्यूशन को, सबको असिस्टेंस मिले, सो दैट ए ट्रायल कैन बी कंडक्टेड इफेक्टिवली. चार्ज फ्रेम हो गया. देखें, चार्ज फ्रेमिंग मीन्स कोर्ट बताती है एक्यूज पर्सन को कि मिस्टर एक्यूज, आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि आपने फलां दिन, फलां टाइम, फलां जुर्म किया था. आप इस बारे में क्या कहते हैं. इसका एक पर्पज ये है, just to inform an accused person that what is allegation, what is charge against him, and that he is going to be tried by the court. अब अगर कोर्ट के सामने एक्यूज ने कन्फेस कर लिया, वो कहता जनाब यस आई एडमिट द एलिगेशन, आई एडमिट द चार्ज, तो अगला स्टेप ये होगा कि कोर्ट ने उसको विदाउट कॉलिंग और इनवाइटिंग प्रोसिक्यूशंस एविडेंस, court may proceed with the matter by convicting him. No evidence, no further proceedings are required to be done by the court but to pronounce judgment in the light of allegation and in the light of confession made by the accused person. But if situation is that accused denies, which normally happens in our society, what I have observed in last 28 years my practice, 99% accused persons deny the allegation. मैं आपको at this juncture एक केस क्लियर करता हूं to which I am eyewitness. In 1993, there was one criminal case being tried by the court of Additional Session Judge Islamabad. It was murder case. Both the parties, aggrieved party and the complainant party, accused party, both were present inside the courtroom. During proceedings, one party who was aggrieved party, उन्होंने अपने एक्यूज बंदों को बदला लेने के लिए कोर्ट के अंदर फायर करके 2 बंदों को उनकी मौत वाक़या कर दी. अजान हो रही है.
That occurrence which I am narrating before you was done in presence of additional session judge while holding his seat as a judge and presiding the court. The accused person who had committed murder inside the courtroom, he was arrested at the spot. Law requires that it is to be subject of investigation. It is not possible कि straight away कहें जी कि जज साहब के सामने आपने जुर्म किया आपको सजा दी जाती है. No, it was not permissible. So, firstly FIR was registered. Matter was investigated by the local police. Police station मारगला के अंदर था. And its challan was submitted in the court. Charge was framed against the accused persons who were arrested at the spot. Inside the courtroom, they were arrested by the staff of the court. What they answered to the charge? उन्होंने कहा नहीं जनाब इल्जाम झूठा है हमारे पर, हमने जुर्म नहीं किया. And the court had to take cognizance of the matter and to go into trial of the case. And for your interest, I want to say that the judge presiding officer in whose presence and in whose courtroom the offense had been committed, he appeared as PW before the court. His statement was recorded by the investigating officer. The judge concerned made a statement under section 161 of the CRPC that yes, on such and such day I was present in my courtroom, I was conducting case such and such. In my presence, this accused person committed offense, and I am witness to this. In order to establish his statement, he had to appear before another court, which was a trial court for that very case, and that additional session judge was subject of cross-examination by the accused. Defense counsel put number of questions to that additional session judge. कि देखें सर मैं ये कहता हूं कि आपका बयान गलत है, सर मैं ये कहता हूं कि आपका बयान ठीक नहीं है, सर मैं ये कहता हूं कि ये मुल्ज़म बेगुनाह है, सर मैं ये कहता हूं कि ये बात इस तरह नहीं इस तरह वगैरह वगैरह. So what I wanted to tell you, either it is a case or occurrence committed inside the courtroom or in any bazaar or anywhere. Pakistani nation, unfortunately, I have seen very rare accused persons who confess their guilt before a court of law, and it was a case which, as example, I have narrated before all of you. So, if accused has denied the allegation, the charge, prosecution is required to establish its case. One thing you all must keep in mind, that onus to establish a charge is always unilaterally on prosecution. सिविल केस के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर बेसिक जो फंडामेंटल फर्क है वो ये है, सिविल केसेस के अंदर तो प्लेंटिफ साइड एंड डिफेंडेंट साइड दोनों ने अपने अपने तय अपने अपने जो जिसे कहते हैं ना उर्दू में तनकीहात, जो कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए, उनके अंदर कोर्ट ब्रैकेट के अंदर ओपीपी और ओपीडी लिख देती है कि इसका ओनस प्लेंटिफ के ऊपर है, इसका ओनस डिफेंडेंट के ऊपर है. तो उसके मुताबिक दोनों पार्टीज ने, आइदर इट इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर केस बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट एविडेंस. But as far as case of criminal nature is concerned, accused is not required to establish his innocence, because law says it is always presumed that accused is innocent unless proved otherwise. So if he is presumed innocent, he is not required, he is not supposed to establish his innocence or to establish that he was not involved. No. Onus solely lies upon prosecution to produce its evidence in the court, and the accused person is to just break chain of evidence of prosecution. जजमेंट्स ये हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर मुल्ज़म ने सिर्फ डेंट डालना है, शक डालना है. और कानून ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर दैट एक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, यानी कि कानून का चहीता बच्चा है.
he is innocent until his guilt is established before a court of law by the prosecution agency. मुल्ज़म ने कहीं पर अपनी एविडेंस पेश नहीं करनी. एक्यूज्ड को चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेकर आएगी, तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के दौरान राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड टू एक्यूज पर्सन. अच्छा डिफेंस काउंसिल वो होगा जो ऑन द डे फर्स्ट, क्योंकि देखिए इसके अंदर, और मैं एक और आपको चीज क्लियर कर दूं, अगर एक्यूज अपनी एविडेंस देना चाहता है, उसकी मुमानित भी नहीं है. सिर्फ फर्क ये आपने ज़हन में रखना है कि आइदर ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस और नॉट. आंसर इज accused is not required by law to produce his defense evidence. No, but it is optional for him after completion of prosecution's evidence. Examination of accused is done by the court under section 342 of CRPC. उसके अंदर नॉर्मली क्योंकि सेक्शन ऑफ लॉ में तो ये लिखा हुआ है at any stage it can be done, but practice in Pakistan is that after completion of prosecution's evidence, courts normally, there are certain stereo style questions which I will tell you now. Court in written form में accused को परफॉर्मा देती है जिसके अंदर जितनी prosecution की evidence पेश हुई, मिसाल के तौर पर there was recovery affected from the accused person, there were eyewitnesses, if there is any confessional statement or any incriminating material collected by the investigating agency, that is to be confronted to the accused person. As far as the examination under section 342 of CRPC is concerned, और judgments यहाँ तक आ चुकी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहते हैं if any piece of evidence has not been asked or confronted to the accused person at the stage of 342 of CRPC, that piece of evidence will not be used against him. इसका पर्पस ये है, इसका विजडम ये है, मंतक ये है ताकि मुल्ज़म को आप एक मतलब बताएं फैसला करने से पहले. क्योंकि देखिए एक तो एक्यूज के डिफेंस जो काउंसिल जो थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की विटनेसेस को. अच्छा डिफेंस लॉयर वो होता है जो ऑन द डे फर्स्ट अपने ज़हन में एक काउंटर स्टोरी बनाकर चलता है. एक स्टोरी प्रोसिक्यूशन की है, एक स्टोरी डिफेंस काउंसिल के ज़हन में हो सकती है, होनी चाहिए. तो वो ऑन वन हैंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को शेक करेगा, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो अपनी चीजें पुट करेगा प्रोसिक्यूशन विटनेस को, ताकि जिस वक्त फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आए तो वो जज को बता सके सर हमारा तो मौकफ पहले दिन से ये चला आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने फलां पीडब्ल्यू को ये बात पूछी थी, हमने फलां को पूछी, हमने फलां को पूछी, तो हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू है इस केस के बारे में. क्योंकि देखें एक्यूज ने भी केस को जब आर्ग्यू करना है अपने वकील साहब के जरिए तो उसके पास भी कोई चीजें आर्गुमेंट के तौर पर होनी चाहिए जस्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट. भले लाइबिलिटी, ओब्लिगेशन, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी प्रोसिक्यूशन की है केस को चार्ज को स्टैब्लिश करना. यस, दिस इज एडमिटेड फैक्ट, बट इवन देन फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ कोर्ट ऑफ लॉ. और फर्दर मोर आप ध्यान में रखें, देखिए केसेस अपील में जाते हैं, अगर आप विनर हैं तो दूसरी पार्टी अपील में जाएगी, इन केस आप लूजर हैं तो आप अपील में जाएंगे. बंदा इक्विट हो जाता है, मुद्दई जो है वो चला जाता है, जी इसकी इक्विटल क्यों हुई है, इसकी इक्विटल को सेट असाइड किया जाए, ही फाइल्स अपील अगेंस्ट इक्विटल. तो इसलिए वो तमाम चीजों को फोर्स ही करते हुए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो अच्छा डिफेंस लॉयर होगा वो अपनी एक स्टोरी स्लाइटली प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को पुट करता जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस एविडेंस, accused is asked few questions. Firstly, जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी इन केस यानी कि वो उससे कोई चीज रिकवर हुई है, एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, आइदर इट इज नार्कोटिक्स, आइदर इट इज एनी वेपन और एनी केस प्रॉपर्टी, कोई ऐसा माल मुकदमा जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, वो रिकवर हुआ, विटनेसेस ने देखा उसको, वो चीजें पुट की जाएंगी वन बाय वन करके. बॉटम के अंदर 3 बेसिक मैंडेटरी सवाल उसको पूछे जाएंगे. एक सवाल ये होगा, वाई दिस केस अगेंस्ट यू
and why witnesses have deposed against you. तो वहां पर एक्यूज ने कुछ ना कुछ बताना है कि ये मुकदमा क्यों बना, ये मुकदमा कैसे बना, क्या मोटिवेशन थी मेरे अगेंस्ट, क्या मैलाफाइड इंटेंशन थी मेरे अगेंस्ट, what was ill intention of the other party, etc etc. So all that thing जो कि उसने ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अगर पूछी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछी तो इवन देन ही इज एट लिबर्टी कि वो इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त अपने दिल के अंदर जो जो बातें उसके हैं वो सारी बातें लिख दे इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट चीज इसी क्वेश्चन के अंदर ये था कि गवाहान ने आपके अगेंस्ट क्यों एविडेंस दी है। अगर किसी एक्यूज को एतराज है इस बात का कि मुल्जमान के जो प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस हैं वो इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं या उनकी मेरे से कोई दुश्मनी है, कोई मुखालफत है, कोई पुरानी कोई चक्कलश को रंजिश चली आ रही है, तो वो इन चीजों को भी इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त बता सकता है तफसील के साथ। कोर्ट इस चीज को डेफिनेटली कंसिडर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है एक्यूज को, डू यू वांट टू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस और नॉट। मैं पहले अर्ज कर चुका आपको कि एक्यूज जो है उसके लिए मैंडेटरी नहीं, ना ही कानून ने उसको कहा कि आप बाउंड हैं कि आप अपनी डिफेंस एविडेंस दें या आप अपनी इनोसेंस को प्रूव करें। प्रिजम्पशन ये है कि वो ऑलरेडी इनोसेंट है अनटिल कोर्ट फाइनल जजमेंट दे। तो इसके बावजूद कानून की स्कीम ये है कि अदालत उसको पूछेगी कि क्या आप अपनी कोई डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं। एक्यूज की मर्जी है अपने डिफेंस काउंसिल के साथ कंसल्ट करके वो हाँ या ना में जो भी होगा वो लिख देंगे। अगला क्वेश्चन ये होता है, डू यू वांट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी टू मेक योर स्टेटमेंट ऑन ओथ। देखिए थोड़ा सा डिस्टिंक्शन जेल में रखें। एक ये है कि डिफेंस एविडेंस का मतलब ये भी हो सकता है वो अपना बयान खुद भी दे सकता है, और अगर वो अपना बयान ना दे तो वो अपने साइड से 1 2 3 4 बंदों को, गवाहान को, जिनको वो मुनासिब समझता है कि उनकी स्टेटमेंट कोर्ट के लिए हेल्पफुल होगी, उनके बयान करवा सकता है। तो दिस इज डिफेंस एविडेंस। मगर अगर वो ये कहता है कि नहीं जी मैं अपना बयान खुद दूंगा, तो यस ही विल अपीयर बिफोर द कंसर्न्ड कोर्ट, ही विल मेक स्टेटमेंट ऑन ओथ। इफ ही इज इन कस्टडी तो फिर वो कस्टडी से आएगा तो कोर्ट बाकायदा उसकी हथकड़ी खोलेगी, कोर्ट के अंदर विटनेस बॉक्स में वो आएगा, अपना बयान जो उसके दिल में अपने ज़मीर के मुताबिक जो बयान देना चाहता है वो बयान देगा ऑन ओथ, एंड दैट स्टेटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द प्रोसिक्यूशन साइड। तो अब देखना ये होता है कि अगर तो एक्यूज समझता है कि prosecution evidence is not sufficient to establish its case, advisable is accused should not go for his own statement under section 340 subsection 2 of CRPC। क्यों कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई एक कदा सवाल उसके खिलाफ चला गया तो इट विल बिकम अ केस ऑफ एडमिशन। So always the lawyers who deal with criminal cases, they always suggest their clients, their accused parties, to don't go for their own statement on oath, because it may be risky thing. The other side's counsel or the prosecutor can be a very competent person who may smash the case as far as course of cross examination is concerned. So it is a risky thing which accused should not go straight away or blindly। उसको और ये डिफेंस काउंसिल की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को बताए कि आपका जब बयान होगा तो फिर आप पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, आपको सवालात पूछे जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप अपना केस लूज कर बैठें और इस कोर्स के मुकम्मल हो जाने के बाद देन केस बिकम्स फॉर फाइनल आर्गुमेंट्स। फाइनल आर्गुमेंट्स में लॉ ये है क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस लेकर आई है तो प्रोसिक्यूशन विल ओपन इट्स आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट एंड द अक्यूज साइड इज टू आर्ग्यू द केस सब्सिक्वेंटली। और अगर
एक्यूज ने अपनी एविडेंस दे दी है या अपना स्टेटमेंट ऑन ओथ दिया है, तो देन एक्यूज पार्टी विल स्टार्ट इट्स आर्गुमेंट्स फर्स्ट बिफोर द प्रोसिक्यूशन आर्गुमेंट्स, एंड देन द कोर्ट इज टू गो फॉर फाइनल जजमेंट. As far as this conversation and part of my lecture is concerned, any question in your mind, I am here, please. सर अगर जो अक्यूज्ड है वो फेवरेट चाइल्ड है लॉ का, तो सर जो 302 होती है या जो बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें वो बेलेबल मतलब वो नॉन बेलेबल क्यों है? क्योंकि देखें एक सेक्शन हमने रखा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, कुछ नॉन बेलेबल है, तो सर बेल तो फिर सबको मिलनी चाहिए ना? देखें, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है. बेसिकली इट इज ए क्वेश्चन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. बात आपकी बहुत वजनी है, लेकिन सारी बातों के बावजूद आप ये चीज अप्रिशिएट फरमाइए कि कोर्ट ने बावजूद ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, बट देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑन बेसिस ऑफ व्हिच एक्यूज कैन बी ग्रांटेड बेल. देखिए, हमने सुना, पढ़ा, देखा केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी. सेक्शन 497 में आप जाएं तो फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड्स के ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल मिलती हैं. देखिए 302 और एनी अदर नॉन बेलेबल ऑफेंस, देयर आर नंबर ऑफ एक्यूज्ड पर्संस हु हैव बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट्स, बाय पाकिस्तानी कोर्ट्स, आइदर बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और द ट्रायल कोर्ट, बेल हो जाती हैं. तो लेकिन आपका सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. तो सच्ची बात यह कि है ये मामला जुरिस्प्रूडेंस है, लेकिन एक मैं करूं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये चीज मौजूद है. ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल ही रखा गया है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान. तो लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने अर्ज किया कि बेल दे दी जाती है. फर्दर मोर में आप ही की बात को आंसर करते एक और अर्ज करता हूं. देखिए, जिस वक्त नैब ऑर्डिनेंस बना ना, उसके अंदर लिख दिया गया कि एक्यूज विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बेल, बल्कि उसमें बाकायदा एक्सक्लूड किया गया 497 को, 498 को, 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, 561 सीआरपीसी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया. रिमांड डेट को भी 3 मंथ कर दिया गया. शाबाश. तो उसके बाद मैटर वेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट इन अ जजमेंट. उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स की नफी है. तो उन्होंने फिर इसका रास्ता ये निकाला कि अगरचे प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल, 497 498 इज नॉट एप्लीकेबल इन नैब केसेस, बट एक्यूज पर्सन अब ये करते हैं कि वो बाकायदा हाई कोर्ट में 199 की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिट पिटीशन फाइल करते हैं. तो उस रिट पिटीशन के अंदर एक्यूज को बेल जो है वो डिसाइड हो सकती है. इफ ही इज एंटाइटल्ड, ही कैन बी ग्रांटेड बेल. सर आपने पीडब्ल्यूज की बात की, डीडब्ल्यूज की, व्हाट आर सीडब्ल्यूज? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर. देखिए, पीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि जो मुद्दई साइड से, पुलिस साइड से, एग्रीड पर्सन साइड से जो विटनेसेस आए, दे आर पीडब्ल्यूज, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस. डीडब्ल्यू स्टैंड फॉर डिफेंस विटनेस, यानी जो मुल्जम ने एविडेंस पेश की. सीडब्ल्यू है कोर्ट विटनेस. अब देखें, कोर्ट विटनेस कब आएगा, कैसे आएगा? दो चीजें हैं. प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस की लिस्ट जो थी वो चालान के साथ एक पूरी लिस्ट अटैच होती है विटनेसेस की, उसे हम कहते हैं जी कैलेंडर के गवाह. तो वो पूरी लिस्ट मौजूद होती है, ABCD XYZ, उनकी लिस्ट मौजूद है. मुल्जम को लिस्ट देने की जरूरत नहीं होती. वो जिस वक्त ये चॉइस अवेल करेगा तो वो अपने विटनेसेस को पेश कर देगा. तो CW का देखें, रिकॉर्ड के ऊपर कोई जिक्र नहीं होता. But a situation may come before court of law while conducting a trial, either court of its own or on request of any party. अगर ये समझे कोई ऐसा आदमी है, कोई थर्ड पर्सन है कि जो इस मुकदमे या इस मुकदमे के वाकयात के मुतालिक रेलिवेंट हो सकता है उसका बयान, तो कोर्ट उस बंदे को CW कॉल कर लेती है. और अगर कोई आदमी CW के तौर पर आएगा, उसके क्रॉस करने के लिए दोनों पार्टीज को राइट दिया जाएगा. यानी कि उसको प्रोसिक्यूशन भी क्रॉस करेगी, उसको डिफेंस साइड भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट रखती है. और कोर्ट विटनेस कॉल करने के लिए कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर जरूरी है. कोर्ट पहले इसकी रेलिवेंस देखेगी
as to whether his statement is required to this court to come to a conclusion. तो उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया, बंदा आया, दोनों पार्टीज को मौका दिया गया कि इसको अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो करें. ये मुकम्मल करें, मैं सबको सुनूंगा, बेफिक्र रहें. Is there any application in this regard put forth by on behalf of parties? जी सर, बिल्कुल सर. मैं एक और अर्ज करूं आपको, अच्छा सवाल है, इसके अंदर एक और मैं बताऊं आपको. देखिए, सिविल लॉ के अंदर प्लीडिंग एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है. क्रिमिनल लॉ के अंदर प्लीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं. और ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, प्रॉपर साइंड, और उसमें हर चीज लिखी जाती है. लेकिन बेसिक लॉ ये है कि इवन विदाउट एनी प्रॉपर एप्लीकेशन you can request a court for bail, you can request anything as far as criminal trial is concerned. लेकिन प्रैक्टिस ये बन चुकी है कि हर चीज की तकरीबन हम एप्लीकेशन जमा करवाते हैं. और जहां तक है CW की बात, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट उसके ऊपर दोनों पार्टीज को सुनेगी और उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर करती है. सर यानी आपने कहा आप एप्लीकेशन देंगे, कौन एप्लीकेशन देगा? प्रोसिक्यूशन देगी? नो सर, जो चाहता है बुलवाना. तो फिर वो उनका विटनेस ना बन जाए? नहीं सर, नहीं सर, देखना ये देखें, जेब में रखें, प्रोसिक्यूशन ने अपने जो विटनेसेस देने थे ना सर, उनके लिए तो उनका नाम ऑलरेडी दे दिया उन्होंने चालान के अंदर. एक विटनेस कोई ऐसा है, मिसाल के तौर पर, कि वो आएगा एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, मगर इनएडवर्टेंटली उसका नाम लिस्ट में नहीं आया. आप सेक्शन 540 देखेंगे ना CRPC का, तो उसके अंदर भी कोर्ट को यह अख्तियार हासिल है, कोर्ट किसी बंदे को भी तलब कर सकती है. पहली बात. दूसरी बात, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है तो क्या वो उसका गवाह होगा? नहीं, नॉट नेसेसरी. वो ये कहेगा जी फलां बंदे को बुलवाएं एज कोर्ट विटनेस. वो मैं उसको अपना गवाह नहीं पेश करा रहा. नो, मैं उसको एज CW कॉल करना चाहता हूं, तो आप उसको CW के तौर पे कॉल करें. वो बाकायदा स्पेसिफाई करेगा उस एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर वो एज CW पढ़ा जाएगा. सर बेसिकली जो लिस्ट में एडिशन होगी वो CW ही होगा, रिगार्डलेस ऑफ अदर पार्टी. जी ऐसे ही, लेकिन देखें स्पेसिफाई करना जरूरी होगा ताकि सो दैट कोर्ट कंफ्यूज ना हो जाए. क्योंकि देखिए, अगर तो आपने ऐड करने और कोर्ट नहीं देखें, ऐड करना इज सेपरेट सिचुएशन. ऐड करने का मतलब ये है, एक आदमी का नाम इनएडवर्टेंटली लिस्ट में से रह गया है, तो वो आप कोर्ट को ये दरखास्त देंगे जी कि फलां बंदा मेरे मुकदमे प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, मगर जब कोर्ट में चालान सबमिट हुआ बाय द प्रोसिक्यूशन तो उसका नाम नहीं आ सका. तो आप उस बंदे को तलब कीजिए, बावजूद कि वो एप्लीकेशन के जरिए आ रहा है, बट ही विल बी ट्रीटेड एज PW, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था. सर ऐसा कोई इंस्टेंस है कि किसी भी पार्टी ने रिक्वेस्ट ना की हो, लेकिन कोर्ट ने अपना प्रोगेटिव यूज करके कॉल किया हो? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और होता है. अगर कोर्ट समझे कि भले किसी साइड ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, मगर पर्टिकुलर पर्सन का आना जरूरी है, कोर्ट हैज अथॉरिटी एंड पावर टू समन, और नॉर्मली और कमोबेश ऐसा होता है कोर्ट्स के अंदर. जी सर, एक चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट करके, आपने स्टार्ट में कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी. यस सर. आई थिंक इसकी बेसिस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे भी जी है. डेफिनेटली सर. सर ग्लोबली एलैबोरेट करेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब क्यों एक बंदा ब्रॉड डे लाइट में क्राइम कमिट करता है, लेकिन वो इसका सहारा लेके इसकी प्रोटेक्शन मिलती है, इसको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे. सर बात ये है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है. जी आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन देखें ना, एक चीज को आप अप्रिशिएट फरमाएं. अगर कोर्ट पहले ही तसव्वुर कर ले किसी बंदे को ये गुनाहगार है, तो उसको फिर फेयर ट्रायल भी अपने दे पाएंगे. देखिए ना, इसीलिए कोर्ट्स ने देखिए ना, कोर्ट एक न्यूट्रल पर्सन है. अगर कोर्ट पहले ये व्यू बना के बैठ जाए कि मिस्टर सो एंड सो गिल्टी है, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि फिर आप उसको एक इंसाफ पर मबनी कोई ट्रायल दे सकें. और इसी चीज को फर्दर सपोर्ट देने के लिए आर्टिकल 10A आपने इंसर्ट किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो भी यही कहता है कि सिविल राइट्स और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो फंडामेंटल राइट है उसका. सर कोर्ट क्या किसी अक्यूज को कंपेल कर सकती है अपने ही केस में अपने खिलाफ विटनेस बनने? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. और मतलब कंपेल कर सकती है ना कोर्ट?
नहीं सर, नहीं सर, दिस इज नॉट पॉसिबल सर। देखें, कोर्ट इज नो बॉडी, कोर्ट एक न्यूट्रल पर्सन है सर। आप कह सकते हैं जज साहब आप क्या कर रहे हैं, मेहरबानी कराएं, यू आर नो मोर न्यूट्रल पर्सन, आप क्या कर रहे हैं, हु आर यू? देखो ना, जज के लिए दोनों फ्री कैन बराबर हैं, ये वाला हाथ भी और ये वाला हाथ भी। कोर्ट ने तो सबसे पहली बात है, कोर्ट ने अपनी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखना है, इंश्योर करना है आपको कि ही इज न्यूट्रल पर्सन। और अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है कि जिससे उसकी न्यूट्रलिटी शेक हो रही है, हाउ ही विल कंडक्ट अ ट्रायल? इट बिकम्स इम्पॉसिबल, एंड लीगली स्पीकिंग देयर इज नो प्रोविजन व्हाटसोएवर, देयर इज नो अथॉरिटी विद द कोर्ट कि कोर्ट किसी को ये कहेगी कि आप फलां काम करें, लो, कैन नॉट। बल्कि मैं सॉरी, मैं एक मिनट, मैं आप ही के आंसर में फर्दर इसको देखें। भले कोर्ट प्रोसिक्यूशन केस को सुन रही है, कोर्ट के नजदीक प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड दोनों की सेम पोजीशन है, दोनों का सेम स्टेटस है। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि भाई ये एक्यूज्ड है लिहाजा आप इसके अगेंस्ट फलाने फलाने गवाह को लेकर आए। अगर कोई जज ऐसा करता है या कहता है तो दिस इज लीगली नॉट परमिसिबल। सर, ये जो अक्यूज्ड ओथ लेता है अबाउट हिज स्टेटमेंट, उसकी क्या वैल्यू होती है जज के सामने डिसीजन मेकिंग में? ही कैन बी लाइंग अबाउट इट। देखिए, हाउ मच डज दैट वेट इन? देखिए ना, एविडेंस के लिए कानून शहादत ऑर्डर ने एक प्रोटोकॉल, एक तरीकेकार वज़ा कर दिया कि जो भी स्टेटमेंट होगा वो अनओथ होगा और वो पढ़ा जाएगा एविडेंस के अंदर। देखें, 342 सीआरपीसी एविडेंस नहीं है, एग्जामिनेशन है, उसको ज़हन में रखें आप। इट इज नॉट एविडेंस। आप उसको 342 सीआरपीसी को देखिएगा, इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन। मैं एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो एग्जामिनेशन के अंदर यूं कह लीजिए कि जज ने एक उससे इनफॉर्मल अंदाज में चीजों के बारे में उसका व्यू पूछा है। डिस्पाइट हिज ऑल आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, इट इज नॉट अमाउंटिंग टू एन एविडेंस। एविडेंस ये है कि वो कहेगा यस जज साहब, मैं अपना बयान अन ओथ देने आया हूं, मेरा बयान लें, अन ओथ लें, आई एम रेडी, या मैं अपने साथ 3, 4, 5 गवाह लेकर आया हूं, ये अन ओथ बयान देंगे, प्रोसिक्यूशन से कहें कि मेरे विटनेस पे बेशक जीरा कर ले, दिस इज एविडेंस। सो जब कोई बंदा एविडेंस देगा तो डेफिनेटली कानून की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको ऑन ओथ आना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करनी है। सर, सेक्शन 13 सर मेरा एक क्वेश्चन है, दो मुलजिम हो एक केस में। सर फिलहाल तो 2 लर्नड कौंसल है मेरे सामने, वन बाय वन आ जाए सर, मैं आंसर करूंगा। सर बिस्मिल्लाह प्लीज। प्रोसिक्यूशन जो है वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे फोकस नहीं करती है, कभी भी वो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस ले आती है। इन केस अगर इस तरह हुआ तो इसका एक्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है? सर गुजारिश ये है, ये तो जिम्मेदारी बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की है या प्रोसिक्यूशन एजेंसी की है। पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये एक ड्रॉबैक जरूर है कि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन तकरीबन एक ही चीज के 2 नाम हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कोर्ट को इससे गर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं किसी केस के अंदर पार्टी हूं, मैं किसी केस को कोर्ट में लेकर जाता हूं तो लायबिलिटी मेरे ऊपर है उसको साबित करने की, ये मेरी चॉइस है, मेरी सिलेक्शन है। मैं कमजोर विटनेस लेकर जाऊं या लो क्वालिटी एविडेंस लेकर जाऊं या अच्छे विटनेस लेके जाऊं, रेलिवेंट विटनेसेस लेके जाऊं, ये तो मेरी चॉइस है या मेरी सिलेक्शन है, नंबर 1। दूसरी बात देखें, आपके क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक चीज है वो ये है क्वांटिटी ऑफ विटनेसेस एंड क्वालिटी ऑफ विटनेसेस। लॉ ने ये कहा कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं, क्वालिटी सफिशिएंट है। अकेला सॉलिटरी स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन ऑफ एक्यूज पर्सन। इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स कोर्ट्स की मौजूद हैं, तो इसलिए क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बनिस्बत क्वांटिटी के। मिसाल के तौर पर आप नॉन इश्यूज के ऊपर या इरेलीवेंट इश्यूज के ऊपर 50 विटनेस पेश करवा दें, उसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर किसी मटेरियल विटनेस के ऊपर अगर एक अकलौता स्टेटमेंट भी आपने ठीक तरह से करवा दिया, इसकी अहमियत और वेटेज ज्यादा होगी। जी सर जी, आप बिस्मिल्लाह, आप 5 करें। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 एक्यूज्ड है सर, उनका ट्रायल हो रहा है सर, अगर उनमें से एक चाहे कि मैं अपना ट्रायल
ट्रायल सेपरेट करवाना चाहता हूँ, तो क्या लॉ हमें इजाज़त देता है? सवाल मुकम्मल हुआ सर? Yes. सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल। देखिए ना, अगर एक क्राइम FIR अगर एक है, उसके अंदर 10 एक्यूज हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उनका एक ही ट्रायल होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्टिंग और कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन ज़हन में रखे हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि सेपरेट हो जाए ट्रायल। वो ये सिचुएशन होती है कि अगर दो मुलजम थे, मिसाल के तौर पर एक जो है वो फॉर एनी रीजन कोर्ट के सामने अवेलेबल नहीं या PO हो चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका है, भाग गया है, खुदा न खास्ता फोत हो गया है, मुल्क छोड़कर चला गया है, या किसी और मुकदमे के अंदर कन्विक्ट हो गया है, या किसी और जगह पे चला गया कि ही इज नॉट फिजिकली अपेयरिंग बिफोर कोर्ट, तो यस एट दैट टाइम कोर्ट हैज राइट कि उस केस को सेपरेट करने का ऑर्डर कर देगी, तो फिर वो ट्रायल सेपरेट हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा सवाल कीजिए आप। सर एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जब हम करते हैं सर, री एग्जामिनेशन अक्सर सर वकील उसमें सर ना हम कमज़ोर होते हैं, हमें कोई सर ऐसे एथिक्स री एग्जामिनेशन करने के कोई गोल्डन रूल्स जनाब के पास है इस तरह जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? सवाल मुकम्मल हुआ आपका? सर देखिए, री एग्जामिनेशन की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये एक इम्कान है, पॉसिबिलिटी रखी गई, गुंजाइश रखी गई, लेकिन ये राइट नहीं है किसी का। कोर्ट की क्रॉस एग्जामिनेशन वैसे पहले अर्ज कर चुका ना सर। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का बयान हुआ, दूसरी पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या चीज अर्न करना चाहते हैं। देखिए मिसाल देता हूं, एक अकरेंस है, मिसाल के तौर पर डकैती का केस है, तो आप डिफेंस काउंसिल हैं, तो आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस को या कंप्लेंट पार्टी को या विक्टिम पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करके क्या चीज हासिल करेंगे। देखें, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये साबित करें कि ये विटनेस झूठा है या इसने वकूआ देखा नहीं। तो अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये इसने वकूआ देखा नहीं, तो आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये आदमी सरकारी मुलाजम था, ये तो इसको अपने ऑफिस में होना चाहिए, तो ये यहां पर कैसे वकूआ देखने आ गया, मिसाल के तौर पर। तो फिर आप उसको पूछें कि भाई तुम क्या काम करते हो, सरकारी मुलाजम हो, तुम्हारा दफ्तर कहां पर है, रोज आते जाते हो, उस दिन तुम छुट्टी पे तो नहीं थे, ठीक है ना। दिस इज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके ज़हन में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का। एक पर्पसलेस क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे ख्याल में एक फुटाइल एक्सरसाइज है। राइट आपका जरूर है, मगर यूं कह लें कि आपने अपना राइट वेव कर दिया। आपको कोर्ट ने मौका दिया था कि ये बंदा खड़ा है आपके सामने, ये सच्चा है, झूठा है, जो भी है, इसको सवाल जवाब कर लें आप उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर सकते हैं। देखिए ना, कानून के अंदर ये मौजूद है, तज़कियतुश शहूद। तो तज़कियतुश शहूद के ऊपर अगरचे पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल को ज्यादा डेवलप नहीं हो सका प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ योर बुक। तो यानी कि विटनेस का सच्चा होना, तज़कियतुश शहूद के म्यार पर पूरा उतरना जरूरी है। तो कानून बनाने वाले ने आपको ये अख्तियार दिया है कि आप उस बंदे का अपना करैक्टर जो है वो पूछ सकते हैं। मिसाल देता हूं, मैंने अपने केस में, आई वॉज डिफेंस काउंसिल, गुजर खान में ट्रायल था, तो एक गांव के नंबरदार थे या काउंसलर थे मेरे ख्याल में, ही अपीयर्ड बिफोर कोर्ट एज PW। मेरे साथ जो को काउंसिल थे मलिक रफनवाज नून साहब, वेरी लीडिंग लॉयर, मैं तो बहुत जूनियर था उस वक्त उनके साथ, अभी भी जूनियर हूं, बट ही वाज सीनियर टू मी। तो विटनेस पेश हुआ, तो मुझे मेरे क्लाइंट से बताया कि वकील साहब इस बंदे के अगेंस्ट 12-13 पर्चे भी हैं। मैंने उसे कहा कि यार ऐसा करो, जल्दी से उन FIR की अटेस्टेड कॉपियां ले लो। उसने उनकी अटेस्टेड कॉपीज ले ली ट्रायल से पहले। जब वो बंदा विटनेस देने कोर्ट में आया, इलाके का मोतबर आदमी था, वो खूबसूरत, उसने कलफ शलफ कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा देखो कि
तज़कियत शहूद के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। इट वॉज माई सजेशन, क्योंकि देखें क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर मैंने पहले अर्ज किया कि आप अपनी एक पैरेलल स्टोरी पुट करते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस को, ताकि कल कल आपने एक स्टोरी बिल्ड करके केस को आर्ग्यू करना है। आपने भी कोर्ट के सामने रखना है कि जनाब असल बात ये नहीं, असल बात ये है, सो दैट कोर्ट कैन कम टू कंक्लूजन कि हाँ ये मौकफ ठीक है या ये मौकफ ठीक है। दो स्टोरीज होंगी ना, कोर्ट आसानी से बात को समझेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये बता दो कि आप, मैं ये कहता हूं कि आप क्रिमिनल हैं। कहता नहीं जी ये गलत है। मैंने कहा देखो आपका नाम, उसने कहा जी मिस्टर ए। मैंने कहा आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में इस नाम के कितने बंदे रहते हैं? उसने कहा जी अकेला मैं ही हूं। मैंने उसको पाबंद किया था कि वो ये ना कह सके जी ये तो कोई फलाना मिस्टर ए है, तो मैंने पाबंद कर ली। मैंने कहा देखो तुम्हारी जो वल्दियत है ना, इस वल्दियत का कोई और बंदा गांव में है? कहता जी नहीं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ये बताओ, सर्टिफाइड कॉपीज मेरे पास थी। देखिए व्हेन ही इज फेसिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, तो आप सर्टिफाइड कॉपी किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की उसको पुट करके उसको एग्जिबिट करवा सकते हैं। मैंने अपने बस्ते में से पहली एफआईआर निकाली। मैंने कहा देखो भाई, थाना फलाना, जुर्म फलाना, मिस्टर ए सन ऑफ मिस्टर बी, सकना गांव का नाम सी, तुम ही हो ना? कहता जी मैं ही हूं। मैंने कहा जैसा भी इसको एग्जिबिट लगाए ना जरा, बिकॉज नाउ इट इज एडमिटेड पोजीशन। वो 5 की 5 एफआईआर मैंने ट्रायल कोर्ट के सामने उस पीडब्ल्यू के मुतल्लिक एग्जिबिट करवा दी। तो आपका सवाल जो था, देखिए जिस वक्त तक आपके ज़हन में ये सिचुएशन नहीं कि मैंने इस विटनेस को किस बुनियाद पर शेक करना है या किस ग्राउंड पर इसको मैं रिजेक्ट करने जा रहा हूं इसकी एविडेंशियरी स्टेटमेंट वैल्यू को, तो पर्पस आप अपने ज़हन में बिल्ड करें, कंसल्ट करें अपने क्लाइंट के साथ। एक दफा नहीं 10 दफा पूछें उसको, फैक्ट्स पूछें, विटनेसेस के बारे में पूछें, मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें आप अपने तौर पर। क्योंकि विटनेस से आने आपको पता होना चाहिए वो कितना पढ़ा लिखा है। अनपढ़ होगा तो उसके जवाब देने का लेवल कुछ और होगा। अगर कोई पीएचडी स्कॉलर होगा आपके सामने तो उसका लेवल कुछ और होगा। और इसके ऊपर एक और अर्ज करता चलो, देखिए कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि थोड़े सवाल हों मगर मुअस्सर सवाल हों, इफेक्टिव क्वेश्चन करें। वैसे पूछना कि जी तुमने क्या खाया था, तुम्हारे कपड़ों का रंग क्या था, उसका वो कहते जी कपड़े नीले थे, तो हमारे पास तो कोई वीडियो नहीं कि नीले थे कि नहीं थे। तो ये अक्सर बेशतर जो सवाल करते हैं ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। मना नहीं, मगर इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछने का मकसद कोई नहीं। आपको मौका दिया गया, आप उसके ऊपर मीनिंगफुल क्रॉस एग्जामिनेशन करें ताकि आप उसको उसकी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर सकें। क्योंकि उधर से प्रोसिक्यूटर पढ़ेगा उसका बयान, तो आपने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़नी है, तो वो पढ़ के आप जज को बताएंगे कि जनाब ये इसका स्टेटमेंट था और ये मेरी क्रॉस पढ़ें, यहां पर इसके स्टेटमेंट की वैल्यू खत्म होने जा रही है। तो कोर्ट आसानी से केस को जो है वो समझ जाएगी और इस तरह से एक्यूज को फायदा होगा कम से कम। सर आपने कहा था कि ट्रायल एक्सेप्शनल केसेस में अलहदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक एफआईआर में 2 शख्स ए एंड बी, ए फिजिकली अनअवेलेबल है तो बी के खिलाफ ट्रायल होता है और वो कन्विक्ट हो जाता है। बाद में ए फिजिकली अवेलेबल कहीं से बरामद हो जाता है, तो फिर ए के साथ क्या मामला किया जाएगा? सर उसका भी सेपरेट ट्रायल होगा, रिमेनिंग डिनोवो ट्रायल होगा। इनफैक्ट देखिए ना, एक सिचुएशन ये है कि एक बंदे का सेपरेट हुआ, उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अगर तो कंप्लीट हो चुका तो फिर ये जो बाद में पकड़ा गया है इसका ट्रायल स्टार्ट होगा फ्रॉम 0। और अगर वो ट्रायल पेंडिंग है तो फिर ये उसको ज्वाइन करेगा। जब ये ज्वाइन करेगा तो फिर वहां से वो डिनोवो ट्रायल हो जाएगा, नए सिरे से एविडेंस लिखी जाएगी पूरे केस की। तो सर डिनोवो ट्रायल होता है और दूसरे इवन दो एफआईआर में दोनों मज़कूर थे, लेकिन दूसरा वो बाद में बरामद होता है, उसके खिलाफ डिनोवो ट्रायल होता है और वो बरी यानी कि वो हो जाता है, बेगुनाह साबित हो जाता है। अब वो फैक्ट्स एक जैसे सिचुएशन जैसे, लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स की आ गए। ऐसा नहीं, देखिए ना बात आपकी बड़ी हद तक जायज और दुरुस्त है। देखिए मसला ये है कि एक एफआईआर के अंदर अगर 5 मुलजम है, हर एक्यूज के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट और सेपरेट एविडेंस है, भले वो विटनेस एक ही आएगा मगर जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो सेपरेट है। ऐसा होता है अक्सर बेशतर कोर्ट्स के अंदर
कि एक एफआईआर के अंदर 4 मुलजम थे, 2 सजा हो गए, 2 बरी हो गए, या 1 सजा हो गया, 3 बरी हो गए, या 3 सजा हो गई, 4था बरी हो गया. सो इट डिपेंड्स अपॉन एलिगेशन अगेंस्ट ईच अक्यूज पर्सन. तो हर किसी ने अपने अपने अगेंस्ट एविडेंस की बेस के ऊपर ट्रीट होना है कोर्ट के हाथों. सर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बेल के ऊपर अप्लाई होती है या ट्रायल के ऊपर? ये सिर्फ बेल के ऊपर है सर, इसका ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं. इसीलिए जजमेंट्स में लिखा होता है कि फाइंडिंग्स गिवन इन दिस बेल ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट मेरिट्स ऑफ द केस. तो बेल की फाइंडिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका ट्रायल पे कोई ताल्लुक नहीं. सर मेरा क्वेश्चन पेंडेंसी ऑफ केसेस के हवाले से और आपका व्यू पॉइंट इस पर चाहूंगा कि पाकिस्तान में सर आपको पता है लॉयर्स की फेवरेट हॉबी है कि एडजर्नमेंट्स लेते हैं. तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स बीन लाइक 50% ऑफ केसेस जो 5 to 10 इयर्स में डिसाइड होते हैं. तो इसके रिफॉर्म्स के लिए सर आप कोई तजवीज़? सर देखें, मैं तो बहुत आजिज़ सा आदमी हूँ. गुजारिश ये है कि एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी बनाई गई थी. इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिस टाइम CJP थे, उन्होंने नेशनल जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये जो आपने नुक्ता उठाया इसको प्रॉपरली एड्रेस किया था और सर्टन टाइम फ्रेम दिया था ट्रायल कोर्ट्स को और एपलेट कोर्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, तमाम थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाकर उसको सर्कुलेट किया था. कुछ अरसा उसके ऊपर बाकायदगी से अमल दरामद होता रहा. खास तौर पर जितना अरसा वो खुद CJP रहे, इट वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट. मगर उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. लेकिन टाइम टू टाइम हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में पेंडेंसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन देती रहती हैं. लेकिन सच्ची बात है कि इसका मदावा भी उन्हीं के पास है. देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है. पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया ये है कि हर मामले की हम एडजुडिकेशन जो है वो अदालत से करवाना चाहते हैं. ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है कि 2 तरह की लिटिगेशन, जो मेरा जाती पर्सनल व्यू है, एक लिटिगेशन ये होती है कि मैंने कुछ रिलीफ हासिल करनी है. दूसरी लिटिगेशन ये है कि मैंने सिर्फ इस बंदे को रगड़ा देना है. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो रगड़ा देने का कल्चर है ना पाकिस्तानी कौम और मुआशरे के अंदर, इसको अभी तक हम अपरूट नहीं कर सके. और उसको अपरूट करने का बड़ा सीधा सा कुलिया ये था कि जो झूठा केस लेकर आए उसको टका के रगड़ा दें. आप ज़हन में रखें, सेक्शन 250 CRPC पढ़िएगा. जो थी ना सेक्शन 35A CPC, उसके अंदर 25,000 था. अब शायद बढ़ा के गालिबन लाख कर दिया है, जो कॉस्ट जो है जिसे हम कंपनसेशन कहते हैं. और जो सेक्शन 250 CRPC है उसके अंदर आज ही 25,000 लिखा हुआ है. यानी कि मतलब ये हुआ, आप किसी बंदे को 10 साल तक खराब करें, उस बेचारे का टाइम जाया करें, उसकी रिस्पेक्ट, उसका ऑनर, सब कुछ उसका वेस्ट हुआ. अल्टीमेटली इफ यू फेल टू एस्टेब्लिश योर केस अगेंस्ट हिम, उसके पास रेमेडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सिर्फ 25,000 रुपए का कंपनसेशन है, या फिर वो डैमेजेस का सूट फाइल करे और मजीद 10 साल तक अदालतों में खराब होता रहे. मेरी सिस्टर को कुछ दिन पहले ना हाई कोर्ट ने 12 लाख का कॉस्ट जी, वो आप सही फरमा रहे हैं. देखिए, अब कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक नई लेजिस्लेशन आ चुकी है और उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास तौर पर जो है वो ऑर्डर कर रही है. लेकिन एक और मैं आपको अर्ज करूं, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है कि हाई कोर्ट जो है उसको कॉस्ट इम्पोज करने का जो राइट है वो किस हद तक है, कितनी अमाउंट की वो कॉस्ट इम्पोज कर सकती है. ये केस के अंदर आई वाज रिप्रेजेंटिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने उसकी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने 5 लाख रुपए की कॉस्ट इम्पोज कर दी है. तो मेरा उसके अंदर व्यू ये था कि ये अनलिमिटेड पावर हाई कोर्ट के पास नहीं. जो मैं अर्ज करना चाहता हूं उसका मतलब ये है कि ये चीज अभी सेटल होनी है कि व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाई कोर्ट्स टू इम्पोज कॉस्ट अपॉन एनी पर्सन. सर, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर हम लफ्ज सुनते हैं जिमनी, सर वो क्या है, और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बारे में बता दें, उसकी लीगल वैल्यू बता दें. ठीक हो गया सर. देखिए सर, जिमनी इज बेसिकली केस डायरी. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है ना सर, पुलिस रूल्स आप देखेंगे वो हर रोज किसी मुकदमे के मतलब जो जो एक्टिविटी करेगा
उसको वापस आकर अपनी फाइल में लिख देगा कि आज मैंने इस मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया फलानी कोर्ट में, वापस आएगा अपनी यादाश्त लिख देगा फाइल के अंदर, दिस इज जिम्नी केस डायरी इनफैक्ट, यानी कि प्रोसीडिंग्स डेली बुनियाद के ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रोसीडिंग्स की उनको आकर वापस अपनी फाइल में लिखेगा, दिस इज केस डायरी नंबर 1। नंबर 2 देखें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक विटनेस पहले कोई बयान अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लिखवा चुका है, दिस इज हिज फर्स्ट और ओरिजिनल स्टेटमेंट। उसके बाद उसको कोई नई चीज ज़हन में आ गई या कोई चीज रह गई थी या कोई ऐसा इवेंट कोई उसके नॉलेज में आया जिसको वो डिस्क्लोज करना जरूरी समझता है, तो उसको कानून ने अख्तियार दिया कि वो जाकर बताए गए आयु साहब ये फलां चीज रह गई थी या ये बात मैं बता नहीं सका था या ये चीज मेरे नॉलेज में अब आई है, तो आप इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, जिस वक्त तक चालान कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ये अख्तियार है और विटनेसेस के पास भी अख्तियार है कि वो बयानात देते रहें, लेकिन जहां तक उसकी एविडेंशियली वैल्यू है वो उस पर मैं अर्ज करता हूं। देखें इसके ऊपर डाइवर्जेंट व्यूज मौजूद हैं कोर्ट्स के, हायर कोर्ट्स के। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की वैल्यू है, ये चीजें दोनों साइड के ऊपर दोनों व्यूज के ऊपर आपको केस लॉ मिल जाएगा। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको अपने जाती व्यू अर्ज कर देता हूं। देखिए टोटली आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखिए मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त अभी आपके सामने अपनी अर्ज पेश कर रहा हूं और इसी दौरान एक नया लॉ पेश हो जाता है, असेंबली ने पास कर दिया जी कि सीआरपीसी को अबॉलिश कर दिया गया है। मिसाल दे रहा हूं, दिस इज न्यू सिचुएशन विच इज कमिंग टू माई नॉलेज। मैं आपको आगे अर्ज करूंगा सर मैं जो अर्ज कर रहा था ना घंटे से आपके सामने, अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब सीआरपीसी खत्म कर दी गई है, दिस इज माई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सो अगर ये कहना जी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बिल्कुल ही कोई शजरे ममनू है, ये बात भी गलत है। सिर्फ चेक एंड बैलेंस इसलिए है सो दैट लोग इस फैसिलिटी को या इस ऑप्शन को मिस यूज ना करें, वरना हर रोज एक आदमी सुबह कुछ और बयान देगा, शाम में कुछ और बयान दे देगा, अगली सुबह कुछ और बयान देगा। क्योंकि देखें कीप इन माइंड कि हमारी सोसाइटी के अंदर बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं अनफॉर्चुनेटली कि जिसके लिए कानून को गाए बगाए सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको मद्देनजर रखकर व्यू देना पड़ता है। सर आप जो कह रहे थे कि मोस्टली अक्यूज्ड दे प्लीड नॉट गिल्टी, राइट? सो डू दे नो द कांसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेन? वो है प्रैक्टिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पाकिस्तान? देखिए प्ली बार्गेन ऑर्डनरी ऑफेंसेस में नहीं है, इट वाज ओनली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन केसेस ऑफ नैब के जो केसेस थे उसके अंदर उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान में। तो पहले तो जो लोग थे वो नैब केसेस के अंदर प्ली ऑफ बार्गेन में जाते रहे और अपने गुनाह बख्शवाते रहे। आफ्टर सम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी, बल्कि इससे ज्यादा शायद आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्ली ऑफ बार्गेन जो है या जो रजाकाराना रिटर्न जो है वॉलंटरी रिटर्न, उन्होंने कहा कि ये भी कन्विक्शन में ट्रीट होगा। ये आप ना समझें कि आपने प्ली ऑफ बार्गेन पैसे देकर गुनाह माफ करवा लिए, ये मिसकंसेप्शन है। सो इसके ऊपर जब से वो जजमेंट्स आई उसके बाद लोगों ने प्ली ऑफ बार्गेन में जाना भी छोड़ दिया है। सर एक जिम्नी के बारे में क्वेश्चन रह गया था सर, ये जिम्नी क्वेश्चन है, आप देखें ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है आपका जी प्लीज। सर जो जिम्नी है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है या पब्लिक एक चीज, और सर इसको हम ट्रायल के अंदर अगर हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं आईओ से तो वो एग्जिबिट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? सर आपके सारे सवालों में जवाब मौजूद है भाईजान, आपको जवाब पता है। देखें जिम्नी जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। लॉ ये है कि डिफेंस काउंसिल हत्ता के प्रोसिक्यूशन काउंसिल भी उसको डायरेक्टली रेफर नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आपको पता हो कि फलान जिम्नी में बात लिखी हुई है, पता होता है सबको, कॉपियां दी होती हैं सबने, तो आप उसका एक तरीकाकार ये कि आप आईओ को ये कहें कि भाई तुम फलान दिन की अपनी केस डायरी को देखो, उसको देखकर बताओ कि तुमने उस रोज क्या लिखा था उसमें। देन ही इज ड्यूटी बाउंड कि वो अपनी फाइल को खोलेगा और जो बात आपने उसको इनडायरेक्टली पूछी है वो कोर्ट के सामने बता देगा, तो आपका मसला हल हो जाएगा। वैसे एग्जिबिट भी नहीं होती
और एक्यूज को भी नहीं दी जाती। मैंने पहले स्टार्ट में अर्ज किया था कि मुल्जिम को क्या चीजें दी जाएंगी, वो स्टेटमेंट्स मैंने अर्ज की थी 161 की हद तक। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफआईआर जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यस सर। तो उसकी बेस पे सर एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी को किस तरह आप चेक कर सकते हैं? सर देखिए एफआईआर सॉरी विटनेस के अगेंस्ट जी जी सर। नहीं मैं सवाल मुझे क्लियर, आप फरमा रहे हैं कि विटनेस के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी। सर देखें एक बंदे के अगेंस्ट अगर 4 या 5 एफआईआर थे तो मैं उसको बड़े कंफर्टेबली कह सकता हूँ ना कि ये क्रिमिनल आदमी है, इसके अगेंस्ट टाइम एंड अगेन डिफरेंट ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगते रहे हैं, भले वो उसमें कन्विक्टेड नहीं, लेकिन फिर भी ये बात तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना कि एक बंदे पर अगर 5 एफआईआर हो तो उसको अपनी बेगुनाही या अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए ये 5 दाग धोना बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। जी कंजीन मैं आई एग्री विद यू कन्विक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखें उसके ऊपर देखें एक एलिगेशन तो है ना। देखें मेरे सुनिए वो कन्विक्ट नहीं हुआ मगर देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट हिम, देयर इज प्रोसिक्यूशन पेंडिंग अगेंस्ट हिम, तो इसलिए जाहिर बात है कि उसके ऊपर क्योंकि हमने देखें मैं जिन रखें हमने बेसिकली एज ए डिफेंस काउंसिल मैंने पहले अर्ज किया ना कि आपने सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करना है, तो शेक करने के लिए 5 एफआईआर उसके लिए काफी हैं। कम से कम वो गवाह बेचारा जो ना वो फिर इतनी आसानी से पढ़ा नहीं जाता कोर्ट के हाथों। सर आपने कहा कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो बेल में एप्लीकेबल है सर, तो क्या ये जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं ऑफेंसेस उन पे भी एप्लीकेबल होगा? जी सर। दूसरा ये कि सर आपने कहा कि अगर किसी ने फॉल्स एलिगेशंस लगा के किसी के ऊपर केस लॉन्च कर दिया है तो एट द एंड अगर वो ये प्रूव कर देता है या प्रूव हो जाता है कि दैट एलिगेशन इज टोटली फॉल्स तो उसके ऊपर सीआरपीसी के तहत 25,000 कॉस्ट लगाई जाती है। तो सर 182 पाकिस्तान पिनल कोड का जो कहता है कि उस बंदे के ऊपर भी एफआईआर काटी जाएगी जिसने फॉल्स करवाई थी, तो फिर इन दोनों में क्या फर्क है और किस वक्त वो काटी जाती है? सर देखिए गुजारिश ये है जो 182 है सर 182 एक सेपरेट प्रोसीडिंग है ट्रायल से पहले यानी देखें वो है फॉल्स इंफॉर्मेशन, भले एफआईआर दर्ज नहीं भी हुई उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बट इट वाज फाउंड एज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो पुलिस को ये अख्तियार है कि एफआईआर उसकी बेशक दर्ज ना करे और उसके अगेंस्ट 182 की प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट को भेज सकती है। इसके लिए ट्रायल का होना लाजम नहीं। नंबर 1 जो मैंने 250 की अर्ज किया देखें इट इज प्योरली रिलेटिंग टू अ ट्रायल, कोर्ट ऑफ लॉ ने ट्रायल किया और प्रोसिक्यूशन केस को डिस्कार्ड किया और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि एग्रीड पर्सन, उसमें एग्रीड पर्सन का मतलब यह है पर्सन हु हैज बीन इक्विटेड, उसको कॉस्ट दी जाए। अब देखिए ये कोर्ट्स नॉर्मली इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करती 250 को, तो बस बंदे को बाइज्जत तौर पर बरी करार दे दिया जाता है लेकिन नॉर्मली कॉस्ट नहीं दी जाती। तो सर असल में क्वेश्चन यूँ था ना कि अगर बंदा वो अक्विट हो गया तो इसका यूं ही समझा जाएगा कि जो एफआईआर काटी गई थी वो गलत थी, अगर गलत ना होती तो वो क्वाशमेंट में चला जाता। यहाँ पे एट द फाइनल स्टेज पता लग गया कि जो एफआईआर जो एलिगेशंस उस पे इंपोज किए थे टोटली फॉल्स थे। सर अब 182 आप कह रहे हैं कि पुलिस को ये इंफॉर्मेशन लगे, आपको पता है सर हमारे यहाँ पुलिस तो खुद पैसे लेके शुरू हो जाती है, तो सर इस स्टेज पे और उस स्टेज पे एलिगेशंस दोनों फॉल्स में ना, दोनों को फॉल्स माना जा रहा है, तो 182 क्या कोर्ट के पास अपनी पावर्स नहीं है कि वो ऑर्डर करे कि 182 की एफआईआर लॉन्च की जाए? नहीं सर नहीं देखें पहली बात ध्यान रखें 182 की एफआईआर नहीं होती, वो कंप्लेंट है, मैंने पहले इसके ना कलंदरा है, बिल्कुल सर, एफआईआर नहीं है बिकॉज इट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल करने के बाद बंदे को बरी कर दिया, तो अब 182 का केस नहीं है, या केस है कि कोर्ट आज खुद उसको 250 के तहत अपने ऑर्डर के जरिए कंपनसेट कर दे, या फिर उस बंदे के पास ऑप्शन ओपन है कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जाके इंडिपेंडेंट सिविल सूट फाइल करे।
ये तरीकाकार है। सर सेक्शन 200 के तहत सीआरपीसी के तहत भी तो कंप्लेंट कर सकते हैं। जी मैं वो पहले रस कर चुका ना। देखिए 2 ट्रैक हैं, एक ये थी कि आप बराह रास्त पुलिस के पास चले जाएं या आप बराह रास्त मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। जो मतलब जो फॉल्स उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी और वो उसमें बाइज्जत बरी हो गया है तो वो डिफेमेशन में भी जा सकता है सेक्शन 500 से। जी दुरुस्त बात है। 200 में भी जा सकता है जी। 200 तो देखें वो बेसिकली वो तो कंप्लेंट की प्राइवेट कंप्लेंट है। सर जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने एक तरह से फिर झूठी गवाही भी दी ना, वो 476 में जा सकता है। देखिए 476 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स होता है। एक चीज ज़हन में रखें कि अदालत जो है ये नहीं कभी भी कहती कि ये एफआईआर झूठी थी या गवाह झूठे थे। नॉर्मली कोर्ट्स का जो वे ऑफ कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव इट्स केस। जज कभी भी नहीं लिखेगा, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी जजमेंट इन पाकिस्तान जिसमें जजेस ने ये लिखा हो कि ये एफआईआर बिल्कुल झूठी थी, हम इसको बरी करते हैं। वो बड़े तरीके से लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव इट्स केस। इम्प्लाइडली तो वही होगा। जी वो बात आपकी ठीक है। नंबर 1 लेके एक चीज और भी ध्यान में रखे हैं, वो आपका क्वेश्चन और मेरे भाई का क्वेश्चन भी सेम टाइम आंसर हो जाएगा। देखिए 2 चीजें हैं, एक ये था कि मेरा मुकदमा झूठा है, ये और सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि मैं साबित नहीं कर पाया। देखिए मिसाल देता हूं मैं आपको, ये बुक मेरी है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। आप कहें जी कि वकील साहब बुक आपकी, आप साबित करें। ये बुक मेरी जरूर है लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा जी वकील साहब इसकी रसीद लाएं, रसीद नहीं है मेरे पास इसकी। मेरा मौकफ सच्चा है बट आई एम नॉट एबल टू एस्टेब्लिश दैट आई एम ऑनर ऑफ दिस बुक। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। और ये जो मैं जो अर्ज कर रहा हूं इसका ताल्लुक बराह रास्त डैमेजेस के केसेस से होता है कि अगर आप मुकदमा साबित नहीं कर पाए इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और है। और अगर आपका केस झूठा था ये एक सेपरेट सिचुएशन है। तो अदालत नॉर्मली इस डिस्टिंक्शन में नहीं जाती। अदालत एक बात लिखती है प्रोसिक्यूशन वाज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश इट्स केस। वो ये नहीं कहती प्रोसिक्यूशन केस वाज फॉल्स और इट वाज बेसलेस केस। नो, ये बात करके वो अपने जिम्मे कोई नहीं लेते कोई एलिगेशन, उसको वो टेक्टफुली डिसाइड करते हैं। सर क्रिमिनल ट्रायल्स में आपके पास होता है डैमेजेस का ऑप्शन? अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ ऐसी 2 पॉइंट ऐसे हो जो जिसके ऊपर क्रॉस किया गया था उसने बोल दिए हो और जिस बंदे ने किया था तो उसको फेवर कर रहे हो, स्ट्रांगली फेवर कर रहे हो, लेकिन जब वो कॉपी लेता है मतलब वो तो मोस्टली मैनुअल तरीके से लेके जाते हैं ना, तो वो मिसिंग आ रहे हो, उसमें बाकी सारा क्रॉस मौजूद हो। अब वो ये भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा क्रॉस करूं क्योंकि उसका ये डर होता है कि हो सकता है कि वो उसी तरह जवाब दोबारा ना दे जो उसको फेवर कर रहा था। तो इसका क्या हल होगा? सर देखें ना, अगर कोई चीज लिखने में रह गई है कोर्ट के पार्ट के ऊपर, उसका एक तरीका तो ये आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये चीज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई थी मगर इनएडवर्टेंटली ये चीज रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी। तो इस हद तक तो कोर्ट्स टू सम एक्सटेंट चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बाकी जो सूरत हाल है वो डिपेंड करता है केस की नोयत के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर। सर मेरा क्वेश्चन गिल्टी और नॉट गिल्टी के हवाले से है। एक मिनट सर, एक कत्ल हुआ सर, और कत्ल जब हुआ पुलिस गई उनको पकड़ने के लिए और उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस सर, इट इज पॉसिबल। सर देखें बड़ी सिंपल सी बात है, एफआईआर के इंदराज के बाद इफ एक्यूज हैज नॉट सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर पुलिस ही मे सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एड इंटेरम प्री अरेस्ट बेल दे दी जाती है। वो कहता है सर मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाऊंगा, मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा, मैं नहीं भागूंगा, मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मेरे अगेंस्ट मुकदमा झूठा है, ये बोगस है, ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, मैलिशियसली फाइल किया गया है, मुझे आप सेव करें। तो जज कहता है ठीक है जनाब, आपको हम एड इंटेरम प्री अरेस्ट बेल देते हैं इतने दिनों के लिए, आप आईओ के पास जाएं, अपना बयान लिखवाएं, अपना मौकफ जाके बताएं। वो फिर जो कोर्ट डेट देगी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से आईओ भी आ जाएगा। कोर्ट दोनों का मौकफ सुन के जो भी फर्दर बनती होगी सिचुएशन के ऊपर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अमूमन इसमें कितना वक्त लगता है? बिकॉज जैसे कत्ल आज हुआ,
और कल शाम के टाइम वो गए FIR कटवाने के लिए, और जब उनके पास गए कि जी अब आप जाके उनको पकड़ के लेके आए, वो शाम के पास उनके पास जाते हैं और पता चलता है कि उनके पास तो सर वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर जितना आदमी स्मार्ट है ना, जितना आदमी जल्दी करेगा, क्योंकि लॉ में आपने पढ़ा होगा कि लॉ विजिलेंट को सपोर्ट करता है, तो ये भी विजिलेंस की बात है। जिसके जिम्मे एलिगेशन है उसको पता तो है ना कि मेरे पे पर्चा होने वाला है, वो फौरन पहली कॉल वकील को करता है, वकील साहब मेरे पे पर्चा हो गया, बताएं मैं क्या करूं। वो कहता है फौरन मेरे चैम्बर पहुंच जाओ फीस लेकर। जी 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 कॉपी मिल जाती है मैडम, वो आपको पता है। देखिए अब तो थोड़ा सा सिस्टम बहुत सारा सिस्टम डेवलप हो चुका है। FIR यू आर राइट, FIR की कॉपी जरूरी है, कॉपी मिल जाएगी उसी वक्त यू आर इंटाइटल्ड कि आप बेल अप्लाई करें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से जेल जाना चाहता हो जेल भरोगे उन पे कौन से इसका जो ट्रायल है वो यही पूरा प्रोसीजर CRPC का मैं सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट यू। देखिए सियासी बात मैं नहीं करूंगा, लॉ की बात आपने की, मैं लॉ ही का जवाब दूंगा। देखिए सर बड़ी सीधी सी बात है, कोई कानून नहीं कि मैं कहूं कि जनाब मैंने जेल जाना है विदाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, नंबर 1। अब सवाल ये कि जेल भरो, सियासी बात नहीं है, प्लीज उसको मुझे माफ कीजिएगा, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा बिल्कुल। तो देखिए जेल भरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सियासी बात हो सकती है, ये लॉ के अंदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस वक्त तक बंदा कोई जुर्म नहीं करता वो जेल नहीं जा सकता। मगर आपने देखा होगा कल एक पुलिस ऑफिसर मेगाफोन के ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो जो लोग जेल जाना चाहते हैं इस गाड़ी में आगे बैठ जाएं। इट इज एब्सोल्युटली टू सरप्राइज माय माइंड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट व्हाटसोएवर। अब उसमें होगा क्या, जो आपके सवाल को मैं फर्दर करता हूं, कल जो हुआ उसमें होगा क्या, वो उनको 144 के तहत 144 की खिलाफवर्जी के अंदर उनको उठा के जुडिशियल कर देंगे। कन्फेशन करके जा सकता है सर, कन्फेशन तो सर कोर्ट में होगा ना, ये भी तो स्टेज है पुलिस के सामने है। लेकिन ये कि वैसे मैंने अर्ज किया ना कि लीगली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फजूल सी चीज है जो ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन है। कुछ होगा सर, आई होप सर आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सलाम और मैं बहुत शुक्रिया आप सबके लिए। मेरी नेक ख्वाहिशात जज्बात हैं। आप मेरे छोटे, कुछ बड़े भी हैं मेरे से, खैर छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ मेरी छोटी बहनें बैठी हुई हैं। मैं आप सबके लिए दुआ हूँ। देखिए ज़हन में रखें 6,000 6,500 वकील इस्लामाबाद कचहरी में रजिस्टर्ड है। आप लोग सब न्यू कमर्स हैं, कुछ न्यू कमर नहीं भी, कुछ पहले से मैं जानता हूँ, वो पीछे बैठे हैं मेरे भाई हैं, पुराने हैं कुछ। तो देखिए ये कंपटीशन का प्रोफेशन है। आपके मुतल्लिक आपके वालिदैन, पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाइयों की ख्वाहिशें अटैच हैं। उन ख्वाहिशों की तकमील तभी होएगी कि जब आप मेहनत करेंगे इस प्रोफेशन में। कोई इस प्रोफेशन में 30 मार खान नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना राइज करेगा। एक नंबर 2 दिन में रखें, रिजक अल्लाह तक की तरफ से है, क्लाइंट रिजक नहीं देता, खुदा पाक देता है। और हमेशा फेयर चलें, क्लाइंट को सीधी बात बताएं। क्लाइंट जब वापस जाता है ना अपने घर में, वो जाकर वकीलों की बातों को कंपेयर करता है अपने घर में। वो देखता है, कहता है जी फलां वकील ने तुम्हें ये बात कही थी, लेकिन फलां वकील जो ना ये ठीक नहीं है, इसने मुझे कोई थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश की। वकील की क्रेडिबिलिटी उसका सबसे बड़ा हथियार है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि इस वकील का घर बड़ा है, इसको मैं वकील करूंगा, ये वकील साहब बहुत बड़े जागीरदार हैं, इसको वकील करूंगा। नो, उसको कोई गर्ज नहीं, मेरी जेब में चवानी भी नहीं है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं। वो मेरी घड़ी, मेरी चश्मा, मेरा फोन, मेरी गाड़ी, मेरा घर नहीं देखेगा, हत्ता कि मेरा ऑफिस भी नहीं देखेगा। अगर चाहिए बात डिबेटेबल है, मगर उसको मेरे ऑफिस से भी गर्ज नहीं। पहला उसकी कंसिडरेशन होती है कि वकील देखो कि सियाना हो, समझदार हो। दूसरा कहता है यार वकील हो, मेरी जेब से ज्यादा खर्चा ना निकलवाए और मुझे बात सच्ची बताए। आप उसको सच्ची बात बताएं, भले वो आपसे अपना ब्रीफ वापस ले गया है,
लेकिन वो आपको पूरी जिंदगी याद रखेगा कि फलां वकील के पास मैं गया था, उसने मुझे बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दी थी, सच्ची बात बताई थी मुझे। मेरे नजदीक मेरा अल्लाह पाक गवाह है, सबसे बड़ा एसेट आपका एज ए वकील ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कचहरी के अंदर। और जजेस भी देखते हैं, जजेस को पता होता है कि 6,000-7,000 वकील हैं। जैसे हम बदकिस्मती से हम जजेस के बारे में व्यू रखते हैं ना अपना डिफरेंट, तो फलां जज बहुत अच्छा है, फलां थोड़ा सा ऐसे है, फलां सख्त है, फलां नरम है, फलां रिलीफ देगा, फलां नहीं देगा। इसी तरह ऑनरेबल जजेस ने भी हमें, उनके पास भी रेटिंग लिस्ट होती है। तो जिस वकील की क्रेडिबिलिटी जज के नजदीक ठीक नहीं, वो नाकाम वकील है। चाहे बहुत बड़ा वकील हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत काम हो उसके पास, मेरे नजदीक वो नाकाम वकील है। जिसकी क्रेडिबिलिटी है क्लाइंट्स के सामने और जजेस के सामने। देखें, आप एक ब्रिज हैं बिटवीन क्लाइंट एंड अ जज। आपने इन बिटवीन रोल प्ले करना है। आपने अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना। आपने जज के सामने अपना प्रोफेशनल पर्सन के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी खराब नहीं होने देना। इट इज डिफिकल्ट जॉब। तो अच्छा वकील वो है कि जो अपना जमीर भी जिंदा रखे, क्लाइंट को सच्ची सीधी दो टोक मशवरा दे। देखें, प्रमोट करना कि जी आओ एक और केस करते हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये इशू बेसिकली एथिक्स का है। आई एम हाईली सरप्राइज्ड कि लोग इस मुआशरे में क्या कुछ करते हैं। तो मेरी आपसे, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से ये दरख्वास्त होगी, प्रोफेशन में जाएं, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए इज्जत का बायस बने, अच्छा नाम कमाएं। घर भी खाली आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट माइंड, मगर आपकी इज्जत हो। इलाके के लोग कहेंगे जी हमारे इलाके में वकील साहबा रहती हैं, माशाल्लाह हमारे फलां अजीज की बच्ची है, जबरदस्त वकील है, ऑनेस्ट वकील है। इससे बड़ा कोई इससे बड़ा एसेट एक प्रोफेशन के पास नहीं। आज से 20, 25, 30 साल पीछे जाएं, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर आया जाया करते थे। ये गाड़ी का कल्चर, ये बड़ी गाड़ी, ये 2 गाड़ियां, ये कल्चर आज की नए दौर की बात है। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेटीरियलिस्टिक चीजें एक प्रोफेशनल आदमी के बारे में कोई उसके लिए उसकी सीवी को मजबूत नहीं करती। आपकी सीवी ये है कि आपकी रिकग्निशन शहर में होनी चाहिए एक वकील के तौर पर, मेहनती वकील के तौर पर और एक ऑनेस्ट वकील के तौर पर। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल है, बिस्मिल्लाह। क्रिमिनल लॉयर की पुलिस डीलिंग्स कितनी ज्यादा होती हैं, खास करके अगर लड़की ने क्रिमिनल लॉयर बनना? मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर जवाब मौजूद है। देखें, मैं एक देखें आपका एक मिनट रुके, देखें शाह साहब जाएंगे उसके बाद बहुत शुक्रिया जी, मैं जस्ट 1 मिनट मैं अर्ज करता हूँ। देखें, पुलिस के साथ ताल्लुक, मैंने छोटी मेरी बहन, मैंने सारी जिंदगी फौजदारी काम किया है। मैं खुद कोई 20 साल प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई पुलिस वाला मेरे चैम्बर में कभी नहीं केस लेकर आया। ये बड़ी गारंटी से बात कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, यहाँ भी कई दोस्त मेरे यहाँ तशरीफ फरमा है। नंबर 1, तफ्तीशी ऑफिसर के साथ रिलेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्रिमिनल प्रैक्टिस की। मगर आपके जो सवाल मैं वो अर्ज करूँ, देखें बदकिस्मती ये है कि जो लिटिगेंट है ना, पहली चॉइस उसकी होती है। उसको मैं अगर 2 नाम प्रपोज करूंगा ना, वो पूछेगा जी कि ये फीमेल लॉयर है, मैं कहूंगा हाँ, वो कहेगा नहीं जी फीमेल फलाना नाम दसो। ये बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, ये चॉइस हमारे लिटिगेंट एक माइंड सेट है। देखें, माइंड सेट बहुत ज्यादा मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा चीजों को, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेकिन सारी बातों के बावजूद मैं अर्ज करूं कि ये कोई जो है ना लेडी लॉयर का होना कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी तौर पर। इफ यू आर कॉम्पिटेंट लॉयर, आपकी रिकग्निशन है, कोई किसी तफ्तीशी का ताल्लुक नहीं। वकील के पास क्लाइंट खुद आएगा चलकर, उसको पता होगा जी कि ये लेडी लॉयर है, बड़ी ठीक वकील। मैं नाम ले देता हूँ, पिंडी में नाहिदा महबूबुल्लाह मरहुमा, एक बड़ा नाम था, आसमा जहांगीर, वो इसके अलावा बड़े नाम गुजरे हैं, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये बात कभी भी ज़हन में मत लाएं
कि मैं चूंकि लेडी लॉयर हूं लिहाजा मेरे पास फलां कैटेगरी केस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है हरगिज़। और दूसरी बात देखिए, जुडिशरी के अंदर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामाबाद जुडिशरी में देखें 45% लेडी जजेस बैठी हुई हैं। तो एवेन्यूज बेशुमार हैं, डोंट यू वरी। अल्लाह पाक आपको इस्तेकामत दे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मंडे को 2 लेक्चर है। मंडे कल मंडे नहीं है, कल मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल तो लेक्चर है आपका, वो मैं बताता हूँ। कल फ्राइडे है, कल 11 बजे लेक्चर होगा। हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं जनाब जुल्फकार अली बासी साहब, वो सिविल लॉज पर आपको लेक्चर देंगे। तो कल 11 बजे। लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ है कि बहुत लेट आए आप लोग। तो अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी कुंडी लगाए एडवोकेट जनरल साहब की तरह। तो आप प्लीज अपना ख्याल करें। मुझे क्या है, आप नहीं सुनेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि कल आप 10:30 तशरीफ ले आए और मंडे को भी 10:30 आ जाए। मंडे को 2 लेक्चर हैं। पहला लेक्चर जो है वो डॉक्टर अजीज और रहमान साहब हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं स्कूल अखलाक के। और दूसरा लेक्चर जनाब कमर सैन शाह सब्जवारी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन और मौजूदा लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन है, उनका लेक्चर होगा। तो काइंडली वो मंडे को है जी। नो लास्ट, अभी आपके लेक्चर पूरे नहीं हुए जी। नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर है और भी हैं। जब खत्म होगा मैं बताऊंगा कि कल आखिरी लेक्चर है। मुझे थोड़ी सी एक्चुअली टाइम फ्रेम लोगों का ऐसा है कि उनसे टाइम लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा वो ना कर देते हैं, इसलिए